Voracious, if you are passionate for eating, passionate for reading, passionate to play, that means you are a voracious player, you are a voracious eater, you are a voracious reader. Please write the meaning. It is actually not used only food. Remember, this word can be used for reading also. He is voracious reader of Shakespeare novels. He is voracious movie goer and never skip any movie to watch. He is voracious eater of Maggie. This way you can use it. The next word is pernicious. Pernicious. Having a harmful effect, especially in a gradual or subtle way. क्या पढ़ते हैं इसको? Subtle. Please mind the pronunciation. Subtle, not subtle. Subtle way. COVID-19 had pernicious effect on the life of each and every individual. This way you can use it. Gradual means slowly and slowly. Subtle means in appropriate way. Abash. In South Africa, black people were abashed by the hands of white people. That means humiliated, insulted, disgraced. So use this word in your answers at the time of drafting them. The last word of the day is wait. Wait means to lessen. जब कोई चीज इंटेंसिटी में कम हो जाए उसे कहते हैं अबेट. The heat was scorching. Temperature was 45 degrees Celsius when I switched on AC and temperature started decreasing. So it abated your suffering. The cool air of AC abated your suffering. In this way, you can use it. If you are feeling severe headache, you took a medicine, it abated your pain. In this way, you can use it. Not physical lessening, but internal or emotional. Clear? I was feeling very much sad and frustrated when my brother hugged me. His affectionate touch abated my pain, abated my suffering. In this way, you can use it. Clear? The last class, we had studied this chapter up to here. On the day of the inauguration, from here we have to start. Questions? How many questions were there? 7 questions were pending, which we have to do. Okay, we will complete. Just wait for a second. Parajit, how many national anthems were sung in South Africa? 2. Name them. I stem. Nkosi Sikelel I Africa.
तो ऑन विच डे एंड ईयर मंडेला डिलीवर्ड हिज मेडन स्पीच? वेरी गुड। 10th May 1994 Mandela delivered his maiden speech. And Bhavya, where was the place? Sandstone Amphitheater in Pretoria. Ayush, Chinani was wife of Mandela or husband of Mandela? Daughter of Mandela. Saima, who was Thabo Mbeki? He was first first vice president. Second was Mr. De Klerk. First vice president was Mr. De Klerk. Second vice president was Mr. De Klerk. That's why he had taken first oath. Then first vice president was Thabo Mbeki. That's why he had taken oath at second number. Then President Mandela had taken oath. Krishna, chevron of Impala jet. What is chevron? A V-shape formation of jets. When Mandela was taking oath, the Impala jets released the smoke of national color, I mean national flag color of South Africa. And it was symbol of South Africans' loyalty. Means it was loyalty of army of South Africa toward their country. Uh, खुशहाल मंडेला कहते हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ। किस बात से वो अनमाइंडफुल नहीं थे? उन्होंने कहा मैं आज तक नहीं भूला वो बात। अनमाइंडफुल का मतलब फॉरगेटफुल। मैं आज तक नहीं भूला, क्या नहीं भूले वो? कि कैसे उनकी वाइफ ने उनको धक्के मार घर से बाहर निकाल दिया। जेल में डाला था। वेरी गुड। द आर्मी ऑफिसर्स एंड पुलिस ऑफिसर दे had stuffed him into jail whereas today the same people were saluting him। बहुत बढ़िया। गुड। आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। इसका तो बैकअप आपका क्लियर है, क्वेश्चन भी आपके रैंडमली क्लियर हो ही गए। ठीक है। सिद्धम आप शुरू करो। इट मीन्स इन साउथ अफ्रीका, क्या कहा उन्होंने देखो, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के पहले 10 साल, 1910। सब 21st सेंचुरी चल रही है तो 2000 प्लस चल रहा है। 20th सेंचुरी तो 1900 प्लस चल रहा था। A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, white skinned peoples क्यों यूज हुआ? पीपल तो अपने आप में प्लूरल होता है, तो पीपल्स वर्ड क्यों आया? बिकॉज देयर वर सो मेनी कम्युनिटीज। वही बात हो गया। गुड। देखिए, पीपल मीन्स ए ग्रुप। अगर मैं पीपल्स वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। और साउथ अफ्रीका पैच ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क। अब क्या हुआ देखो, इन साउथ अफ्रीका देयर वर सो मेनी कम्युनिटीज। इन्होंने अपने झगड़े तो निपटा दिए आपस में। दे पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। अब ये तो सारे हो गए एक जैसे। आजकल देख रहे होंगे आप इंडिया, INDIA, उसमें कांग्रेस भी है, आप भी है, और दुनिया भर की पार्टीज है। ये किसके खिलाफ खड़ी हो गई? बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हो गई है सारी। इन द सेम मैनर इन साउथ अफ्रीका जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, इन्होंने अपने डिफरेंसेस पैचअप कर लिए और अपना एक ग्रुप बना लिया। और ये सारे के सारे किसके अगेंस्ट खड़े हो गए? ब्लैक पीपल के लिए। ऑल दीज पीपल स्टूड अगेंस्ट ब्लैक पीपल। क्या उन्होंने बोला? यस। आगे शुरू कीजिए। द स्ट्रक्चर
इन ह्यूमन सोसाइटीज इसका मतलब इट टुक 90 years. साउथ अफ्रीका टुक 90 years टू ओवरटर्न दैट सिस्टम. हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं भैया आयुष? डिस्क्रिमिनेशन, वेरी गुड. ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था उसकी 1900 जो 10 में शुरू हुआ, मतलब 20th सेंचुरी की जो शुरू में शुरू हुआ और 20th सेंचुरी के लास्ट में खत्म हुआ. Today in South Africa, now there is no discrimination against any caste, any color, any creed, any community. हम सब एक हैं. और मैं खुद मंडेला कह रहा है, मैं खुद 80 साल का हो गया हूँ. 8 decade ऑफ माई लाइफ. सोचिए 80 year old मैन शपथ ले रहा है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए. और यहाँ इंडिया में 60 साल के बाद भी खड़े नहीं होते बिस्तर से. वो बीमारियां लग जाती है उनको. और वो वहां पर प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए शपथ ले रहे हैं. एंग्लो एक्चुअली दिस वाज वॉर बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज. इधर देखिए पहले एक बार. एंग्लो एंड बोर के बीच में वॉर हुई थी. तब से सिस्टम शुरू हो चुका है. सिंस देन द सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्रॉप्ड अप. ये हिस्ट्री के टीचर ज्यादा बता पाएंगे इसके डिटेल में जाकर के. हाँ, नहीं 300 साल तो नहीं रहा. उन्होंने क्या बोला? जो चीज 20th सेंचुरी के शुरू में शुरू हुई, फर्स्ट डेकेड में, वो लास्ट डेकेड में खत्म हुई. इसका तो 90 ईयर्स हो गए ना. 300 साल नहीं हुए. आप पढ़िए आदित्य. दैट डे हैज कम. Please underline this line. I was simply the sum of. Yes. Not means written. अब देखिए ध्यान से. You know very well India was under custody of the colonials for 200 years. अब तो 200 साल गुलाम रहे. But why do we recall only Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, महात्मा गांधी एंड नेहरू? मतलब हम कुछ ही लोगों को जानते हैं. Do you think the credit of India's freedom goes to only these handful people? No. In the history, there are so many people who died without registering their name in the history. And credit goes to them also. The same happened in South Africa. मंडेला कह रहे हैं कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, आप गलत है. बिफोर मी सो मैनी फ्रीडम फाइटर्स सेक्रीफाइस देयर लाइफ. और अफसोस इस बात का है टुडे दे आर नॉट एबल टू सी कि उनके सेक्रीफाइस का रिजल्ट क्या हो चुका है. उनको थैंक्स भी नहीं कर सकते बिकॉज नाउ दे आर नो मोर. वो उठे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और मर गए. दे डिड नॉट इवन सी द रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स. और आज व्हेन साउथ अफ्रीका हैज गॉट फ्रीडम, हम उनको थैंक्स भी नहीं कर सकते. हम किसको थैंक्स नहीं कर सकते भाई? अर्नब. कौन से फ्रीडम फाइटर? those who those who fought against Britishers but died, and now they were not alive to see the result of their efforts. Please underline policy of apartheid. हाँ, आई वॉज सिंपली द सम, मतलब मैं तो इन सबके सेक्रीफाइस का टोटल हूँ. आई एम जस्ट ए पार्ट ऑफ दोज पीपल सेक्रीफाइस. आई एम नॉट एवरीथिंग. एक छोटा सा हिस्सा हूँ मैं तो उनका. हाँ जी.
ब्रुटैलिटी, अनइंटेंडेड, ये नाम है उन लोगों के जो आप नीचे पिक्चर्स देख रहे हैं। दीज आर द मेन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। पहले इसको समझ लीजिए आप। मंडेला क्या कह रहे हैं? पॉलिसी ऑफ अपार्थेड। मान लीजिए आपने, मैं अभी कुछ टाइम पहले इंग्लिश ऑनर्स को एक बुक पढ़ा था, भीमाइना। भीमाइना इज बुक बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने अपनी बुक में लिखा, नाम बता रहा हूँ बुक का, भीमाइना। उस बुक में साफ लिखा हुआ है कि आप देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया, वो कहते हैं, उन्होंने लिखा अपनी बुक में कि जब मैं स्कूल जाता था ना, तो मुझे बाहर बिठा देते थे, जैसे आप सब बैठे हुए हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। मैं मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मुझे बाहर बिठाते थे। मान लीजिए बहुत गर्मी पड़ रही है, मुझे प्यास लग रही है, अगर मैं नल को टच कर दूंगा मेरी पिटाई हो जाएगी। तो वो क्या करते थे, जो हमारा पियोन होता था स्कूल का, चपरासी, वो हमें पानी पिलाता था ऐसे हाथ में, एक कप बना करके। हमें ऐसे कप बनाना पड़ता था और हम वो पानी पीते थे। घर से हम अपनी दरी लेकर के आते थे, आप बोरी कह सकते हैं, जिसको आप सैक कहते हैं इंग्लिश में। और वही बिछा के बाहर बैठते थे, वही उठा के ले जाते थे। बाई चांस किसी दिन पियोन नहीं आया, उस दिन में पानी नहीं मिलता था, नो पर्सन फ्रॉम अपर कास्ट गेव अस वाटर टू ड्रिंक। और कितनी बार ऐसा हुआ कि उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, जबकि वो एक रिच पर्सन थे, उनके फादर ब्रिटिशर्स के यहाँ सर्वेंट थे। द सेम मैनर, हरिजन का नाम सुना ही होगा आपने, गांधी ने नाम दिया शेड्यूल कास्ट लोगों को हरिजन। इवन टिल दिस डेट जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनके मन में फ्रस्ट्रेशन है अपर कास्ट लोगों के लिए। लगान मूवी देखी होगी। इन द मूवी लगान देयर वाज ए कैरेक्टर कचरा। अगर आपने मूवी देखी हो शायद, ये देखी तो देख लेना, उसमें कैरेक्टर है कचरा। और आमिर खान इन दैट मूवी वांटेड टू इन्वॉल्व कचरा इन द टीम, लेकिन जैसे उसने से कंधे पर हाथ रखा, सबने क्या कहा, हो। जो औरतें थी उन्होंने साड़ी मुंह में घुसेड़ ली, हो, जैसे पता नहीं बहुत बड़ा पाप हो गया, औरत है ना। तो सबने मना कर दिया, भाई साहब इसको टीम में नहीं लेके, ये शेड्यूल कास्ट है। मूवीज में सोसाइटी की रियलिटीज दिखाते हैं। इसका मतलब क्या जो शेड्यूल कास्ट पीपल है वो हम लोगों को, जो अपर कास्ट लोग हैं, इस चीज के लिए माफ कर पाएंगे? नहीं। आज आप लोगों को जॉब में 27% रिजर्वेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आपके ब्रदर सिस्टर फॉर्म भरते होंगे कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के, आपने देखा होगा जनरल कैटेगरी के लिए जो फॉर्म 4,000 रुपए का है, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए वो 500, 1,000, 800 रुपए का है। पहली बात, जो सीट्स रिजर्व है शेड्यूल कास्ट कोटा के लिए, चाहे आपके 50% मार्क्स हो आपको मिल जाएगी अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं आपके 96% आपको नहीं मिलेगी। आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो, खूब रोते रहो, लेकिन भाई साहब बीज किसने बोया? हमने खुद बोया। यहाँ पर भी मंडेला ये कह रहे हैं, ये है पॉलिसी ऑफ अपार्थेड। अपार्थेड का मतलब अलग कर दो, ये काले हैं ना, इनको अलग कर दो। डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो मंडेला कहते हैं कि दिस पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री। घाव छोड़ दिया इसने बड़ा गहरा, जो अभी तक भरा नहीं है, पता नहीं कितने टाइम लगेंगे भरने में। और ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी इयर्स, चलो जनरेशन तो नहीं लगेंगी, लेकिन सालों लग जाएंगे ये भरने में। हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके भरने में? क्या नाम है आपका? हाँ, चारवी, पॉलिसी ऑफ अपार्थेड। उस घाव को भरने में जनरेशन तो नहीं लगेंगे, लेकिन सालों लग जाएंगे। हम भूलेंगे कैसे कि हमें इन लोगों ने कितना मिसबिहेव किया, मिसयूज किया। और ऑपरेशन ब्रुटेलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। कितना ही मारा काटा पता नहीं, इसका इफेक्ट हम भूल नहीं सकते। और शायद इसीलिए इट प्रोड्यूस ओलिवर थैम्बोस, वाल्टर सिसुलो, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लोग, इनके नाम बड़े अजीबो गरीब से हैं, ये सब फ्रीडम फाइटर है।
अब देखो ना, मान लीजिए इस क्लास में कोई बच्चा आया और बिकॉज उसका कॉम्प्लेक्शन गोरा नहीं है या वो किसी और कम्युनिटी का है, मैं रोज को गालियां देता हूँ, रोज मारना शुरू कर दूं, रोज को क्रिटिसाइज करूं, अबेट करूं, तो क्या होगा? अबैश करूं तो क्या होगा? एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 4 दिन सुनेगा, 5वें दिन वो मुझे पकड़ लेगा गली के अंदर, क्या आ जाओ भाई साहब। भाई कोई कब तक गुंडागर्दी बता, हाँ अगर आप गलत कर रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूँ आप सुनोगे क्योंकि गलती आपकी है। मंडेला ने भी यही बोला कि हम लोगों के साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और दैट्स व्हाई इन जैसे लोग पैदा हुए। These are freedom fighters who could not tolerate the injustice which was done by the Britishers and they raised their voice and unfortunately आज ये लोग जिंदा नहीं है। मैं आपको याद होगा एक और मूवी आई थी जिसमें वो फ्रीडम फाइटर था पहले वो उससे तोड़ते थे गन को, उसको कार्ट्रिज को, क्या नाम था उसका? ये वॉज ए सोल्जर। मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे रेड कपड़ों में था, आमिर खान की मूवी थी वो, आमिर खान की मूवी थी, उसमें आमिर खान का ही रोल था। और लेटर ऑन ही हैड स्टूड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, प्रीवियसली ही वाज विद ब्रिटिशर्स। तो जब उसको मालूम चला कि जो कार्ट्रिज है उसको मुंह से तोड़ा जाता है, कुछ नाम याद है? उसमें पिग का वो लगाते थे वो, चर्बी, पिग और काऊ का, और वो लोग प्योर वेजिटेरियन थे। तब उनको पता लगा कि ब्रिटिशर्स हमें कैसे यूज कर रहे हैं। ये नाम यहाँ क्लिक कर रहा है, हल्के हल्के भी माइंड पे नहीं आ रहा है, मेरे जवान पे नहीं आ रहा है। तो उसके ऊपर मूवी आई। ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हुए जो अननोटिस्ड मर गए। These were the same kind of freedom fighters in South Africa जिनको आज मंडेला याद कर रहे हैं। आगे बढ़िए, देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जेनरोसिटी। आगे जैसे मालूम होगा साउथ अफ्रीका में माइंस हैं, डायमंड की, गोल्ड की, सिल्वर की। तो मंडेला कह रहे हैं कि ठीक है, वी हैव वेल्थ बट मेरी रियल वेल्थ है मेरे लोग। दे आर रिचर देन एनी डायमंड, एनी सिल्वर, एनी गोल्ड। अच्छी चीज है। इफ लीडर ऑफ ए कंट्री इज अप्रिशिएटिंग द पीपल ऑफ हिज नेशन। प्रगति आगे पढ़िए एक और पैराग्राफ। ये हाँ एग्जाम में आएगा आपका आरटीसी। परेश, हाँ चलिए चलिए। रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि आपने नाम सुना, ऐसे ऐसे फ्रीडम फाइटर हुए हैं हिस्ट्री में, मंडेला कह रहे हैं कि आपकी इमेजिनेशन भी चौंक जाएगी। जैसे लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा आपने। अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़े, इन विच मैनर शी हैड फॉट विद द ब्रिटिशर्स अलोंग विद हर सन, कहते हैं कि कमर पे अपने बेटे को बांध करके लड़ते चली गई थी वो। छत्रपति शिवाजी कैसे मारा था उनको? उनको हाँ 40 डेज तक टॉर्चर किया था, उनकी बॉडी का एक एक पार्ट उन्होंने काटा था। आप सोच नहीं सकते कितना एक्सप्लॉयटेशन हुआ। कैन यू इमेजिन कि जो हमारी छोटी सी उंगली ऐसे कट जाती है तो कितना पेन होता है। तो उनकी बॉडी का एक एक पार्ट अलग अलग दिन काटा गया। इतना सफर किया होगा उन्होंने 40 डेज तक जब वो मरे। तो यहाँ पर भी मंडेला कह रहे हैं कि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि आपकी इमेजिनेशन हिल जाएगी कि वैसा आप नहीं सोच सकते। इतना एक्सप्लॉयटेशन। मैंने भी पढ़ा था इंग्लिश ऑनर्स में कि शायद आपको डिस्कस भी किया होगा
कि हाउ डिड ब्रिटिशर्स टॉर्चर द ब्लैक पीपल, दे टाइड देम विद द ब्रांच ऑफ ए हाई ट्री अपसाइड डाउन। उनको उल्टा टांग देते थे, वो भी किसके ऊपर? जस्ट टो, पैर के अंगूठे के ऊपर रस्सी बांध करके वो उल्टा टांग देते थे। पूरी बॉडी का प्रेशर किसके ऊपर है? सिर्फ पैर के अंगूठे के ऊपर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता होगा। और वो बंदा तब तक लटका रहता था जब तक वो मर नहीं जाता। उसको मरने में नहीं कि 5-6 मिनट लगते थे, उसको मरने में कई दिन लग जाते थे, और वो पूरी तरह तड़फ के मरता था, क्योंकि बॉडी का पूरा पेन एक आपके टो के ऊपर आ गया। और आप उसके सारे लटके हुए, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, जो भी आपका वेट है, सिर्फ एक अंगूठे के ऊपर है। ये रियलिटी है, मैं कोई फिक्शन नहीं बता रहा हूँ। दिस वाज एट्रोसिटीज। तो भैया खुश हो रही है, इतनी हार्टलेस हो आप बहुत हार्टलेस हो। एक नहीं थी आपसे, उड़ गए कैसे? टूटेगा तब उसको एक जर्क करेंगे, खींचेंगे। आपने उसको बांध के छोड़ दिया, कुछ भी कर लो टूटेगा ही नहीं वो। लड़के देख लेना घर पे आज। जो करो भाई। अंडरलाइन करो इसको। करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। क्या प्रोनाउंसिएशन है? ट्रायम्फ। करेज का मतलब ये नहीं था कि मैं डरता नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं मुझे डर नहीं लगता। करेज का मतलब है ये नहीं कहना कि मैं डरता नहीं, बल्कि ट्रायम्फ ओवर इट, यानी कि डर के ऊपर जीत। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। कंकर्स दैट फियर। तो मंडेला कह रहे हैं भाई साहब, ब्रेव मैन वो नहीं होते जो कहते हैं मैं नहीं डरता। ब्रेव मैन वो होते हैं जिन्होंने डर को जीत लिया। देखा ना ऋतिक रोशन का एड, डर के आगे जीत है। तो बस वही, लेकिन निकल मत जाना है वो करने के लिए। आप पढ़िए केशव। No one is born winning because of the color of their skin or background or their ability. People must learn to wait, and if they can learn to wait, they can love. Love really using even hard. Then it's Grimmest, grimmest means very serious. never protect. Courage or अंडरलाइन कर लो। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. पहले ये बताइए, लास्ट लाइन है बिल्कुल। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। लक्ष्य, मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? गुड मेटाफर। द फ्लेम, जो लौ होती है आग की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लेम? रोशनी देना। जब आपको अंधेरे में रोशनी नजर आती है तो आप रास्ता देख लेते हैं। गुडनेस ऑफ ए पर्सन इज लाइक ए फ्लेम। अच्छे लोगों की कंपनी में हमेशा पॉजिटिविटी आती है, हमें अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है। इससे पहले मंडेला ने एक बात और बोली, व्हेन वी टेक बर्थ नेचुरली वी हैव फीलिंग ऑफ लव। नफरत करना हमें सिखाया जाता है, हेट करना कभी नहीं सिखाया जाता। ओ, लव करना कभी नहीं सिखाया जाता। लव इज ए नेचुरल फीलिंग। आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब आप उनके साथ ज्यादा टाइम गुजारते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, तो नेचुरली आपके पास आ जाते हैं, चाहे आप स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो बाद में। आप स्ट्रेंजर में पहले 2 दिन नहीं आएंगे, 3 दिन शायद नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप उनको प्यार करेंगे तो वो आपके पास अपने आप आ जाएंगे। और अगर आप उन बच्चों के पेरेंट्स ही क्यों ना हो, बच्चा पास आया, 2 कान नीचे लगा दिए। बच्चा पास आया, फिर 2 कान के नीचे लगा दिए। बच्चा पास है, उसके बाल पकड़ के उसको उठा दिया। क्या बच्चा आपके पास आएगा? आप चाहे बच्चे के बाप ही क्यों ना हो, वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। इसका मतलब लव इज नेचुरल, हेट इज टॉट। मंडेला कह रहे हैं जेल में कितनी बार ऐसा हम पिटते थे, भाई जेल में उनकी भी पिटाई हुई होगी। ग्रीमेस्ट आवर्स, जब हमारी पिटाई हुई, सीरियस टाइम, मैंने देखा कि जेल के जो गार्ड्स हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में इमोशंस थे। बस मैं तभी समझ गया कि हम जीत जाएंगे। कि अगर लव है, फीलिंग्स है,
तो चेंज कहीं ना कहीं आता है। एक बार लास्ट का पैरा दोबारा पढ़ लीजिए अपने आप। इसी बार रिज्वाइन कर लो आप।